Okay, a very good evening to everyone. Welcome to our channel. So, we have completed in our first video microbes in household products. So, we were doing microbes in human welfare, in which we discussed who are included as microbes, and we have also covered the first topic, that was household products, in which we covered curd, cheese, dough of idli and dosa, bread, toddy, and fermented food, in which we covered three things: BSF, B for bamboo shoot, S for soybean, and F for fish. So in this video, that is the second part, we will be covering microbes used in industrial products, and we will be discussing five subtopics under it. The first is alcoholic drink, second antibiotics, third organic acids, fourth enzyme, fifth is bioactive molecules. So, talking about microbes in industrial products, first of all, for industrial production, we require to grow microbes on a larger scale, and for that, we need large vessels. And the large vessels in which we grow microbes are known as fermenters. So, fermenters are basically large vessels that are used for industrial production. So, for reference, in NCRT, we have two diagrams which we need to cover. The first is of fermenters. You can see these are the large vessels in which microbes are grown. Okay, so these are known as fermenters. And the second is of fermentation plant. Okay, so the first is of fermenters and the second is of fermentation plant. So, under industrial production, our first subtopic is fermented beverages, in which we are going to cover the alcoholic drinks. Okay, so your first point is Saccharomyces cerevisiae. This we have also done in bread, also in household products. Okay, so Saccharomyces cerevisiae is known as brewer's yeast as well as baker's yeast, because it is used in baker's industry as well as in brewing industry. Brewing industry is basically, it's concerned with alcoholic drinks. Okay, so Saccharomyces cerevisiae is also known as brewer's yeast and baker's yeast. It is used for the commercial production of ETOH. ETOH stands for ethyl alcohol. So, Saccharomyces cerevisiae is used as for commercial production of ethyl alcohol. So, basically, we take raw materials. These includes malted cereals and fruit juices, on which we grow these microbes, basically Saccharomyces cerevisiae, anaerobically, and this microbe converts the raw material into final product, and it is ethyl alcohol or alcohol. As soon as the content of alcohol becomes 10 to 18%, the fermentation stops. Okay, and then we can collect the final product, do further downstream processing, and then it is ready for commercial purpose. Okay, for commercial selling. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कौन सा अल्कोहल ड्रिंक हमें मिल रहा है, किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे. पहला, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. अगर तो ग्रेप हम यूज़ कर रहे हैं तो या तो वो ब्रांडी बनेगा या तो वो वाइन बनेगा, डिपेंड करता है हमने किस प्रोसेस से बनाया. सेकेंड है, अगर पोटैटो यूज़ कर रहे हैं हम, तो पोटैटो से जो हमें अल्कोहलिक ड्रिंक मिलेगा वो क्या बनेगा? या तो रम बनेगा, तो विस्की बनेगा, तो क्या बनेगा? ठीक है, तो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो है दैट विल डिसाइड द ड्रिंक हैंसफोर्थ फॉर्म. ओके, सो अल्कोहलिक ड्रिंक फॉर्मेशन जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला मटेरियल, सेकेंड है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. मटेरियल जो है हमें वो नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. सेकेंड चीज़ जो है वो पढ़नी है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. ठीक है, उसमें भी हमें जो प्रोसेस पढ़ना है दैट इज़ डिस्टिलेशन. अगर तो हमने डिस्टिलेशन किया है, ठीक है, तो उसके तीन एग्जाम्पल हमें याद करना है: विस्की, ब्रांडी एंड रम. अगर हमने डिस्टिलेशन नहीं किया है, मतलब अल्कोहलिक कंटेंट उसमें ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम है, सॉरी, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है वाइन एंड बियर. डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है? बेसिकली हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर जो है हमने अल्कोहलिक ब्रॉथ डाल दिया, जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया, जो ये फाइनल प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया. अब हमने इसको किया हीट करेंगे तो हमें पता है अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से कम होता है, तो वो इस फ्लास्क को ही हमने दूसरे एक और फ्लास्क के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस फ्लास्क में जो है हमारा अल्कोहल कलेक्ट हो गया. क्योंकि इथाइल अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये जल्दी वेपराइज करके यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको वाटर के, कोल्ड वाटर या कूलेंट के अंदर इस फ्लास्क को डिप कर दिया, ताकि जो हमारा वेपराइज्ड अल्कोहल है इस फ्लास्क में आएगा,
तो वो जल्दी जल्दी जो है कंडेंस होकर दोबारा पानी बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा ही अल्कोहल उड़ के आ जाएगा और पानी यहाँ ही रह जाएगा, थोड़ा बहुत पानी भी जो है हमें यहाँ पे इस फ्लास्क में मिलेगा। बट ऑफ कोर्स अगर मैं इस फ्लास्क को ए कहूँ एंड इस फ्लास्क को बी कहूँ, तो जो अल्कोहलिक कंटेंट इसमें मिलेगा हमें फ्लास्क बी में, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल विल बी मोर. So this process of distillation is done to increase the concentration of alcohol in the alcoholic drink. तो इन 3 ड्रिंक्स में विस्की, ब्रांडी एंड रम, इनको हम डिस्टिलेशन करके इन तीनों ड्रिंक्स को बनाते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट इनमें इसीलिए अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो ज़्यादा होता है, अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइन एंड बियर. वाइन एंड बियर में जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो कम होता है. क्यों? क्योंकि ये विदाउट डिस्टिलेशन वाले अल्कोहलिक बिवरेजेस के एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है सेकेंड सब टॉपिक दैट इज़ एंटीबायोटिक्स. सो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स. पहले हम इस वर्ड को समझते हैं. तो एंटीबायोटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है जहाँ पे एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ. ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज़ अगेंस्ट लाइफ इज़ नोन एज एंटीबायोटिक्स. नाउ फ्रॉम वेयर इज़ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड? बेसिकली एंटीबायोटिक्स आर obtained from microbe and these antibiotics are nothing but chemicals. So ये antibiotics होते क्या? These are basically chemicals which are obtained from microbes and these chemicals are used to kill or they are used to retard the growth of other microbes. Okay, so antibiotics are basically chemicals which are obtained from microbes and are used to kill or inhibit the growth of other microbes. अब ये antibiotics जो होते हैं they act as anti for other microbes. Okay, मतलब antibiotics जो है they are acting as anti life for microbes because these are killing them or inhibiting their growth, but antibiotics act as pro life for human. For example, this is a human, इसको किसी माइक्रोब ने इन्फेस्ट कर दिया, इसके अंदर जाके कोई इन्फेक्शन कॉज किया जिसकी वजह से इस ह्यूमन की सर्वाइबिलिटी जो है कम हो रही है. अब इस ह्यूमन ने एक एंटीबायोटिक इनटेक किया. अब ये एंटीबायोटिक ने अंदर जाके इस माइक्रोब को मार डाला. इस माइक्रोब को मार डाला तो इस माइक्रोब के लिए ये एंटीबायोटिक उसका फिटेलिटी का रीज़न है, उसके किलिंग के लिए रीज़न है. तो इसलिए जो एंटीबायोटिक है इट इज़ एक्टिंग एज एंटी लाइफ फॉर दिस माइक्रोब. सो एंटीबायोटिक इज़ एंटी फॉर माइक्रोब बट प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन. क्यों? क्योंकि उसने इस इंसान की, इस एंटीबायोटिक ने इस इंसान की लाइफ बचा ली, इसकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस इंक्रीज़ कर दिए. इसलिए एंटीबायोटिक एक्ट एज प्रो लाइफ फॉर द ह्यूमन. Next important point is that antibiotics are the most significant discoveries. It is among the most significant discoveries of 20th century. Next is penicillin. Penicillin जो है it is the first antibiotic that was discovered. It was discovered by Alexander Fleming and it was a chance discovery. So basically जो हमारे साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरियम दैट वॉज स्टेफाइलोकोकस. देन ही ऑब्जर्व दैट इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम couldn't grow around a fungus and that fungus was no one other than Penicillium notatum. And from this he concluded that जो ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का ग्रोथ है दैट इज़ रिटार्डेड और इनहिबिटेड बाय दिस फंगस पेनिसिलियम नोटेटम. एंड इसी से उसने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दी विच वॉज अ चांस डिस्कवरी, जिसमें उसने बता दिया कि ऐसा कुछ जो है ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम सेक्रीट कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है जो कि स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो नहीं करने दे रहा है उसके अराउंड. सो इसी से हमें पता चला कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं. यू कैन से कि ये जो है एक टाइप ऑफ अमेंसिलिज्म इंट्रैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लाइक से पेनिसिलियम नोटेटम, इसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान, बट स्टेफाइलोकोकस का क्या है, डेट्रीमेंटल इंट्रैक्शन है. मतलब इसका तो पेनिसिलियम नोटेटम के लिए ये पेनिसिलियम नोटेटम एंड स्टेफाइलोकोकाई के बीच में जो ये इंट्रैक्शन है दिस इज़ एमेंसिलिज्म. इसमें क्या है, फंगस पेनिसिलियम नोटेटम ने एक ऐसा केमिकल रिलीज़ किया जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई उसके अराउंड ग्रो नहीं कर पा रहा है. एंड इसी चीज़ को हम जो है एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जहाँ पे ये केमिकल होता है विच इज़ रिलीज्ड बाय अ माइक्रोब एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब. द नेक्स्ट इज़ that full potential of penicillin as an effective antibiotic was established by Ernest Chain and Howard Florey. They basically used
this antibiotic penicillin for treating American soldiers in World War II. And all these three scientists, Florey, Chain, and Alexander Fleming, all three of them received Nobel Prize in 1945. So our third topic is enzyme, जिसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना है एंजाइम, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज. बेसिकली जब हम फ्रूट जूस घर में बनाते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा यार, जैसे मौसमी का जूस हो गया या ऑरेंज का जूस हो गया, तो जब जूस को तुम ग्लास में डालते हो तो उसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं. बट वही जब हम कोई बॉटल जूस खरीदते हैं, जैसे कि फ्रूटी हो गया या ट्रॉपिकैनो हो गया, तो उसमें फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन बॉटल जूसेस में ये एंजाइम्स पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज डाल देती हैं. अब जो ये एंजाइम्स होते हैं ना, ये इन फाइबर्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज बोथ आर यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग द बॉटल जूसेस इन इंडस्ट्रीज. द सेकेंड एंजाइम विच वी नीड टू डिस्कस इज लाइपेज. लाइपेज जो है ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जब भी हमारे कपड़ों पर ऑयली स्टेन आ जाता है तो लॉन्ड्रीज में हम लाइपेजेस को यूज़ कर लेते हैं इन ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए. तो सेकेंड एंजाइम जो हम डिस्कस करें दैट इज़ लाइपेजेस. इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द laundry. The third enzyme which we need to discuss is streptokinase, which is also known as tissue plasminogen activator और TPA. अब ये जो एंजाइम है ना, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस. बेसिकली क्या है, जब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा यार ऑयली फूड खाते हैं, ठीक है, उनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है. बेसिकली उनके ब्लड वेसल्स में ऐसे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो जब ब्लड फ्लो करता है, इट इज़ टफ फॉर ब्लड फॉर इट्स स्मूथ फ्लो थ्रू द आर्टरीज. तो ऐसे केस में क्या होते हैं, अगर यही चीज़ हार्ट में जो हार्ट के आर्टरीज है उनमें अगर ऐसे ब्लॉकेज आ जाए तो देयर आर चांसेस कि ऐसे लोगों में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज़ हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए बिकॉज ऑफ डेड ऑफ हार्ट टिश्यूज़. सो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो जो डॉक्टर्स जो हैं, जो सबसे पहली चीज़ हार्ट अटैक वाले पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं दैट इज़ TPA, दैट इज़ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. TPA जो है इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर. ये क्या करेगा, इन क्लॉट्स को बस्ट कर देगा ताकि ब्लड जो है दोबारा इन आर्टरीज के थ्रू स्मूथली फ्लो कर पाए. सो दिस इज़ द फर्स्ट you can say treatment given to patients who have undergone myocardial infarction. ओके, सो स्ट्रेप्टोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है दिस इज़ नथिंग बट अ क्लॉट बस्टर. ठीक है, जो ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बने हुए क्लॉट्स है उनको बस्ट कर दे. नाउ आवर फोर्थ टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स इन विच दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंडर जो ये टेबल दिया है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्स, it is one of the most frequently asked question. You can put 7 star here. Okay, one of the most important question, you can say table it is, because it is asked in almost all in all the years of AIPMT and NEET. So you have to remember it as it is. You have to remember the organic acid, the microbe which produces that acid, as well as वो microbe किस category में आता है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, क्या है, ये तुमको याद करना है. सो बेसिकली इस टेबल में हमें एक ही फंगस याद करना है दैट इज़ एस्परगिलस निगर. बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस टेबल में वो तीनों के तीनों क्या है, बैक्टीरिया है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड दैट इज सीट्रिक एसिड. जो सीट्रिक एसिड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब एस्परगिलस निगर विच इज़ अ फंगस. एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई. देखो यार, एसिटिक एसिटाई, तो पता चल गया एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई, पता ही चल गया, तो नाम से ही नाम है. ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, बैक्टीरिया है. ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाई, तो ये भी याद हो गया, और ये क्या है, ये भी बैक्टीरिया है. लैक्टिक एसिड तो पता ही है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया. ओवरऑल बस एस्परगिलस निगर ही है जो कि फंगस है एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग सीट्रिक एसिड. बाकी तीन जो है वो बैक्टीरिया है और इनके नाम से ही इनके माइक्रोब का भी नाम है, और वो सारे क्या है, वो सारे बैक्टीरिया है. बस तुमको जो याद करना है ये फर्स्ट वाला ही जो है थोड़ा टफ है याद करना, बाकी सब तो तुम ऐसे ही मतलब याद हो जाएगा जल्दी जल्दी. सो अवर फिफ्थ टॉपिक इज़ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. नाउ व्हाट आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स? बेसिकली बायोएक्टिव molecules have biological activity.
अब इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए एंड फोर्थ द सेकेंड इज स्टैटिन्स, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड दिस इज अ फंगस। स्टैटिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनस्कस परप्यूरिस विच इज़ अ ईस्ट, ठीक है। दिस यू नीड टू रिमेंबर, बेसिकली ये जो है याद रख लेना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। स्टैटिन्स जो है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनस्कस परप्यूरिस एंड मोनस्कस परप्यूरिस इज अ ईस्ट। तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है कि ये ईस्ट होता है, ऑर्गेनिज्म इज अ ईस्ट। स्टैटिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनस्कस परप्यूरिस एंड दिस इज अ ईस्ट। एंड द सेकेंड इज साइक्लोस्पोरिन ए which is produced by Trichoderma polysporum which is a fungus. And the second point in cyclosporin A is it is a immunosuppressive agent, मतलब ऐसे पेशेंट जो who have undergone organ transplant, ठीक है, उन पेशेंट्स को जो है इन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पर अपनी पूरी लाइफ जो है डिपेंड करना पड़ता है, बिकॉज वी नो दैट देयर आर लिम्फोसाइट्स इन आर बॉडी विच कैन distinguish between self and non-self cells and hence there are chances कि वो lymphocytes जो हैं इन organs को जो कि transplant किए गए हैं उनको accept ना करे, ठीक है। and इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो organ reject हो जाए and there can be chances that it can lead to organ failure. Okay, so all the patients who have undergone organ transplant, they are under the dosage of immunosuppressants. Okay, now my question for this video is that which cells, which lymphocytes in our body are responsible for graft rejection in case of organ transplant patient? I repeat, which lymphocytes, okay, which lymphocytes are responsible behind graft rejection in organ transplant patients, जिनकी वजह से जो है इन पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इन स्टैटिन सेज इट इज़ अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब ये कैसे कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता, बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और उसको फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। अब हमें पता है एंजाइम जो है लॉक इन की फैशन में काम करते हैं, तो इस एंजाइम का एक पर्टिकुलर यहाँ पे डिप्रेशन है और इसी डिप्रेशन के शेप का जो है हमारा सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट आराम से अपने एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा और देन फाइनल प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब जो स्टैटिन्स है इनका भी शेप सेम होता है, तो जब कोई इंसान स्टैटिन्स लेता है तो स्टैटिन्स जो है कॉम्पिटिटिवली सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करती हैं टू बाइंड विद द एंजाइम। स्टैटिन्स बीन मोर इन नंबर और यू कैन से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टैटिन्स सबस्ट्रेट के चांसेस टू बाइंड विद द एंजाइम डिक्रीजेस, और सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ बाइंड करेगा ही नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ स्टैटिन वर्क्स, इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द सबस्ट्रेट while binding with the enzyme and hence cholesterol is not formed. So this is how statin work as a blood cholesterol lowering agent. So let's just read out its function once. Statins act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. So it is all about competitive inhibition. So this is how we have completed our second topic, that is microbes in industrial products. Just let us take a quick recap of the whole lecture. So under this topic in microbes in industrial production, we studied about fermenters, that fermenters are large vessels and these are required under industrial production because we need to grow microbes on a larger scale. We looked into two diagrams given in NCERT, one was of fermenters and the second was of fermentation plant. Then we started with fermented beverages, in which we studied about Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, which is also known as baker's yeast, and it is also called as brewer's yeast. It is grown on malted cereals and fruit juices, and there it converts them anaerobically into alcohol. Alcoholic drink formation depends upon two factors, that is type of raw material used and the second is type of processing. If अगर हमने distillation से alcoholic beverage को obtain किया है तो उसमें alcoholic content ज़्यादा होगा, जिसके तीन एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज विस्की, सेकंड ब्रांडी, थर्ड इज रम। अगर हमने डिस्टिलेशन के बिना उस alcoholic drink को बनाया है तो उसमें alcoholic content comparatively कम होगा, एंड उसके एग्जाम्पल है वाइन एंड बियर। Then, so the second topic which we discussed was antibiotics. Antibiotics is a Greek word which means against life. Antibiotic is against life or anti-life for microbe against which it is working, and it acts as pro-life for human. Basically, antibiotics are chemicals which have potential
to kill and inhibit the growth of other microbe, and these chemicals are produced by microbes only. The first discovered antibiotic was penicillin, and it was a chance discovery. It was discovered by Alexander Fleming. He was working on bacterium staphylococci, and तब उसने ऑब्जर्व किया कि उस अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में फंगस पेनिसिलियम नोटेटम भी ग्रो कर रहा था, एंड उसके अराउंड जो है बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकाई नहीं ग्रो कर पा रहा था, एंड इससे उसने कंक्लूड किया कि ऐसा कुछ तो जो है ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम सेक्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम उसके अराउंड ग्रो नहीं कर पा रहा है. फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक was established by Ernest Chain and Howard Florey. They used this antibiotic to treat the American soldiers in World War II. For this antibiotic penicillin in 1945, three scientists, that is Fleming, Chain and Florey, received Nobel Prize. Then comes organic acids, one of the most important topic. Organic acid, citric acid is produced by Aspergillus niger, which is a fungus. Acetic acid by Acetobacter aceti, bacteria. Third is butyric acid, Clostridium butylicum, bacteria. Lactic acid, Lactobacillus species, bacteria. Then comes bioactive molecules. Bioactive molecules जो है they have biological activity. इनमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है. First is cyclosporin A and the second is statin. Cyclosporin A is produced by fungus Trichoderma polyspora. It is an immunosuppressant used by patients who have undergone organ transplant. Statins जो है that is produced by Monoscus purpureus, and it is basically produced by a yeast. It acts as a blood cholesterol lowering agent. It competitively inhibits the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol, and this is how it works. एक टॉपिक मैं भूल गई डिस्कस कराना, रिवाइज कराना, आई मीन दैट इज एंजाइम्स. एंजाइम्स में हमने 3 एंजाइम्स पढ़े हैं. पहला है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज. These are used for clarifying the bottle juices in industries. The second is lipases. It is used in detergent formulation, and it is helpful for removing the oily stain from the clothes in laundries. The third enzyme studied was streptokinase or TPA, that is tissue plasminogen activator. It acts as a clot buster in patients who have undergone myocardial infection. उनमें जो clots होते हैं उनको वो burst कर देता है ताकि instantly जो है blood flow करना चालू कर दे, ताकि जो हार्ट का टिश्यू है वो डेड ना हो. एंड दिस क्लॉट बस्टर TPA इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट video we will be discussing sewage treatment plant. So stay tuned with this channel and do subscribe the channel. Thank you.